Hello students, good morning. Thank you to all. And for to class 9th student, I wish to say a special request to all of you. Please study your physics properly, because your online test from physics chapter 1 up to which already it has been finished. You are going to give your exam within 2 or 3 days from physics. So you should read your physics books properly. जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक को बहुत प्रॉपर्ली अच्छा से पढ़ेंगे आप लोग, और एक एक बात को समझेंगे। किताब के अंदर से भी किताब है, ये क्वेश्चन है, किताब के अंदर से क्वेश्चन है, और उसके बाद इधर आपको ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी है एक्सरसाइज से। तो पहले एक्सरसाइज से और जो दूसरा एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन इन गैसेज, और डिफ्यूजन इन गैसेज में हमने आपको बताया था कि स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस by the process of diffusion. Again, we had told you that the smell of food being cooked reaches us even from a considerable distance by the process of diffusion. Same thing. And the smell of food being cooked reaches even from a considerable distance by the process of diffusion. Same thing. And if fish is being fried in a home, then its peculiar sharp smell can be detected even when we are quite far off due to the diffusion of gases into air. ये होता है, इसी को आगे बढ़ाना है टॉपिक। ये जो है पार्ट 3 है, डेटेड ऑन 17/6/2020, क्लास 9th है। यहाँ क्लास 9th लिखना है हमको, क्लास 9, ठीक है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 3, डिफ्यूजन विसर्जन के बारे में समझना है। डिफ्यूजन इन गैसेज को हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, देन डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो डिफ्यूजन इन गैस जो है ये 2 पार्ट में पढ़ा। पहले पार्ट में डिफ्यूजन को पढ़ा है, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में डिफ्यूजन इन गैसेज कंप्लीट होगा। व्हेन वी लाइट एंड इंसेंस स्टिक मींस अगरबत्ती, जब हम अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक को जब लाइट करते जलाते हैं किसी रूम के कॉर्नर में, है ना, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन द होल रूम वेरी क्विकली। तो सपोज दैट वी आर हियर एंड समवन among us is going to light an incense stick, and someone is at the another corner of the room. Then after some time, very quick, we can say very quick, he or she can get the fragrance of the incense stick. So when we light an incense stick in a corner of our room, its fragrance spreads in the whole room very quickly. The fragrance of burning incense stick or agarbatti spreads all around. Even there, the fragrance of burning incense stick spreads all around due to the diffusion of smoke into the air. हवा में डिफ्यूजन होता है स्मोक का, किसके स्मोक का? इंसेंस स्टिक के स्मोक का। और उसमें जो सुगंध है, वो सुगंध का जो मॉलिक्यूल है ना, फ्रेग्रेंस का मॉलिक्यूल, वो एयर के मॉलिक्यूल के साथ, है ना, कोलिजन होता है, टक्कर होती है, टकराहट होती है, और उसके बाद फिर वो मॉलिक्यूल मिल जाता है हवा में, और हवा के साथ बहते हुए जब दूसरे कॉर्नर पर जो हमारा फ्रेंड है उसके नाक तक पहुंचता है, तो वो जो है उसको सूंघ लेता है और उसका सुगंध मालूम हो जाता है। So the particles of gases produced by the burning of incense sticks move rapidly in all directions because they have more kinetic energy. They collide with the particles of air present in the room, mix with air, हवा के साथ मिल जाते हैं, and reach rapidly, है ना, every part of the room के सभी पार्ट में पहुंच जाते हैं। Another example is here. When someone opens a bottle of perfume in our corner of a room, अगर कोई परफ्यूम का बोतल ही अगर खोल देता है ना, किसी रूम के इस कॉर्नर में अगर मैं खोलता हूँ परफ्यूम का बोतल, और सपोज दैट you are
in the next corner of the room. Then the smell of perfume spreads due to the diffusion of perfume vapor into air, and you will get the essence of परफ्यूम का सुगंध आपको मिल जाएगा, और फिर क्या होगा कि आप समझ लीजिएगा कि हाँ परफ्यूम का बोतल खुला हुआ है. So when someone opens a bottle of perfume in one corner of a room, its smell spreads in the whole room quickly. What happens here? The smell of perfume spreads due to the diffusion of perfume vapor into air. तो हवा में परफ्यूम वेपर क्या होता है? परफ्यूम वेपर का हवा में डिफ्यूजन होता है. So when the bottle of perfume is opened, then the liquid perfume liquid perfume जो है quickly changes into vapor. उसका प्रेशर कम होता है खोलने पर, बॉटल खोलने पर, और फिर क्या होगा? जब प्रेशर कम होगा तो जो लिक्विड स्टेट में है परफ्यूम वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, गैसेस स्टेट में, एंड द परफ्यूम वेपर मूव वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, बिकॉज इन वेपर स्टेट्स molecules of gases or molecules of vapor have very high kinetic energy, therefore they move in all directions in air, सभी डायरेक्शंस में, है ना, सभी दिशाओं में क्या होते हैं? हवा में मिलते हैं, मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स, है ना, एंड देयरफॉर स्प्रेड विद एयर इन द होल रूम, और पूरे संपूर्ण रूम में फैल जाता है. इस तरह से हम यह भी पता कर सकते हैं क्या चीज? द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस LPG इन आवर होम्स इज डिटेक्टेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कुकिंग गैस इनटू एयर. मींस कुकिंग गैस जब लीक होता है ना, लीक आउट होता है किचन में, तो हमें बाहर से ही उसका है ना आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि कुकिंग गैस है ना का ये लीक हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली LPG तो स्मेललेस है, कोई उसमें गंध नहीं है, गंधहीन गैस होता है. उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन. क्या कहते हैं? इथाइल, है ना, इथाइल मरकैप्टन होता है ना, मरकैप्टन. ये केमिकल सब्सटेंस जो है ना, ये केमिकल सब्सटेंस है ना इज मिक्स्ड इन LPG, है ना, ड्यू टू विच it provides, हमें देता है, प्रोवाइड करता है ना, ये स्ट्रॉन्ग स्मॉल स्मेलिंग ये प्रोड्यूस करता है. यहां भी डिफ्यूजन होता है. तो LPG जो है वो हमारे घरों में है ना, LPG जो कुकिंग गैस है, अगर उसका लीकेज होता है तो हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं. ये भी डिफ्यूजन, इसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस है, विसरण, है ना, ये प्रक्रिया है. ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड इथाइल मरकैप्टन प्रेजेंट इन द कुकिंग गैस, है ना, इनटू द एयर वी गेट द एसेंस ऑफ द LPG, और वी कैन से वी गेट a strong smelling of LPG, and we understand that LPG is leaking. Now we have to discuss about the diffusion in liquids, about which we will discuss tomorrow, and I think that this message is enough for you, for all of you, for today. Okay, thank you to all.